Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 21 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो एज यूजुअल पहले हम फ्रेंड्स रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स को। लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन अरेबिक लैंग्वेज डे की। 18 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 18 को ही हम माइनॉरिटी राइट्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन वीमेन हॉकी टीम की। इन्होंने अभी FIH का हॉकी वीमेंस नेशन कप जीत लिया है, स्पेन में जो हुआ था वेलेंसिया में। स्पेन को ही हराया इन्होंने 1-0 से इन द फाइनल, और इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर, स्पेन सेकंड पोजीशन पे। फिर बात करते हैं वर्ल्ड कप की। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे हुआ था? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, कतर में हुआ था। दूसरा, किन्होंने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। थर्ड टाइम अर्जेंटीना ने ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता है। और अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे इनकी टीम के? आप यहाँ पे देख सकते हैं, लायनल मेसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022 टाइटल किनको क्राउन किया गया? सरगम कुशाल को। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 32 साल की हैं ये, मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं। बॉर्न कहाँ हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में। एंड इन्होंने एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर से शादी की थी। एंड इनकी बात करें तो 2001 में इंडिया की किसी महिला को मिसेस वर्ल्ड क्राउन किया गया था। और 2001 के बाद अब 21 साल बाद 2022 में सरगम कुशाल को वापस से मिसेस वर्ल्ड 2022 क्राउन किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नासा के हबल एंड स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा 2 अर्थ लाइक प्लैनेट्स डिस्कवर किए गए जहाँ पे वाटर के ट्रेसेस मिले। ये आपके प्लैनेट्स 218 लाइट ईयर्स अवे हैं। और एक लाइट ईयर कितना होता है आपके? जिसमें एक लाइट ईयर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड की, या फिर हम कह सकें लाइट अपनी स्पीड पे ट्रैवल करते हुए एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो आपका एक लाइट ईयर होता है। तो ऐसे 218 लाइट ईयर्स अवे है ये आपका नासा के द्वारा जो ये 2 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए गए। इनके नाम है केपलर 138d और केपलर 138c। नेक्स्ट बात करते हैं US एयरफोर्स के द्वारा भी सक्सेसफुली टेस्ट किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल को। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या रहेगा? AGM-183A। और ये 20 मैक की स्पीड से ये आपकी ट्रेवल कर सकती है।
नेक्स्ट बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इन्होंने अभी टाई अप किया HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ फॉर बेंश्योरेंस। और बेंश्योरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, जो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करेगी टू द कस्टमर्स ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बीच में, जिसका नाम है सूर्य किरण। 16th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, नेपाल में ये एक्सरसाइज हुई थी और इंडिया और नेपाल के बीच ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज रहती है। 15वीं एडिशन की बात करें तो ये इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि जो इंडिया का कोल प्रोडक्शन है ना, वो बिलियन टन को से सरपास कर जाएगा बाय 2025। और यहीं के इसके कॉन्ट्रारी एक रिपोर्ट और आई कि अगर हम इसी पेस पे चलते रहे और क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होता रहा तो आने वाले टाइम में इंडिया में जो हीट वेव्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो इंडिया में सर्वाइबिलिटी का जो टेम्परेचर है ना गर्मियों में, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। इवन जिससे क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, हीट की वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा, तो जो आपकी प्रोडक्शन है, जो लेबर कॉस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिलेगी। इसी से आप देखें तो इवन एक और रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें बताया गया कि 2030 तक जो अमाउंट ऑफ एयर कंडीशनिंग अभी हमें ज़रूरत पड़ती है एज ऑफ नाउ, वो बढ़ के 8 टाइम्स हो जाएगा 2030-35 के बीच में। तो अगर हम बात करें नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की, कब ऑब्जर्व किया जाता है, आपका 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा कि अगर आप देख रहे हैं अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्लाइमेट चेंज का आप इफेक्ट अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, आप उसको फील कर पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए आप देखेंगे कि डेली कुछ ना कुछ नई स्कीम आती रहती है और कोई ना कोई सरकार कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती रहती है, ताकि हम अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें और इन्वायरमेंट को एक बेटर प्लान बना सकें। इवन अगर आप दिल्ली की न्यूज़ देखेंगे तो दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ते अभी जो सारा इंडस्ट्रियल वर्क है उसको रोक दिया गया है। तो कमिंग बैक, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 2 ही दिसंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे याद रखेंगे, वो है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी डे, क्योंकि कंप्यूटर आज की दुनिया में ऐसी चीज़ है जिसको बच्चों को आना ही चाहिए, लोगों को आना ही चाहिए, इसकी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे इन द जॉब्स मार्केट। आपको जॉब मिलेगी अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तब आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ आज की दुनिया की हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो क्या, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को, और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये भी आपका 2 दिसंबर को ही ऑब्जर्व करा जाता है। चलिए फिर आ जाते हैं, इंडिया ने अज्यूम किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी को फॉर दिसंबर 2022। और याद रखेंगे ये सेकंड टाइम है, एक साल पहले भी इंडिया ने अज्यूम किया था इन द अगस्त 2021 प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और अब फॉर द सेकंड टाइम इन द पास्ट 1 और 2 ईयर्स इंडिया ने सेकंड टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को अज्यूम करा है। G20 की भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगी 1 दिसंबर से लेके 2022, 1 दिसंबर से लेके 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होगी G20 की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 के बारे में। किस बुक को इस अवार्ड से कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया, वो है द चिपको मूवमेंट। और ऑथर कौन रहेंगे इस चिपको मूवमेंट के, वो है बुक के द चिपको मूवमेंट के, यह है शेखर पाठक। अगर चिपको मूवमेंट एज अ होल की मैं बात करूं तो ये 1973 में लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था इंडिया में? फादर ऑफ चिपको मूवमेंट कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। और वैसे अगर देखूं मैं, चिपको मूवमेंट था क्या, आप पेड़ जो होते हैं ना, आपके पेड़ों से लोग चिपक जाते थे, उनको हक कर लेते थे ताकि उसकी काटा ना जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट था कि पेड़ों को मत काटो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये था आपका चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, इनके द्वारा अभी एक डिजी यात्रा लॉन्च किया गया और ये 3 एयरपोर्ट्स में लॉन्च किया गया था इन द कंट्री। बट बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, कहाँ पे लॉन्च किया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन की मदद से आपको एंट्री मिल जाएगी ड्यूरिंग दिस यूजिंग दिस डिजी यात्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि आपके फेस रिकॉग्निशन की मदद से आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने इंडियन कोस्ट गार्ड में चेन्नई तमिलनाडु में अभी रिसेंटली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को कमीशन किया है।
क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर करा गया है। किसके द्वारा कमीशन किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कमीशन किया गया। कहाँ कमीशन किया गया, चेन्नई तमिलनाडु में इसको कमीशन करा गया है। मूविंग ऑन, गरुड़ा शक्ति की बात करें तो ये ऐसे पूछा जाएंगे कि गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट कराई गई, किसके बीच में कंडक्ट कराई गई वो बताओ, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है ताकि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, तो वो रहेगा असम। ऐसी अगर आप याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्विट्जरलैंड का, ताकि इंडिया वहाँ पे इंडियंस को प्रमोट किया जा सके कि वो स्विट्जरलैंड जाके विजिट करें और ट्रैवल एंड टूरिज्म वहाँ पे बढ़ सके स्विट्जरलैंड में। सिमिलरली अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक MOU साइन हुआ था ताकि एक दूसरी कंट्रीज के बीच में हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। ये वो कंपनी है जो टॉप 3 में आई इन सस्टेनेबल कंपनीज इन योर मेटल माइनिंग सेक्टर वर्ल्ड में। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है एशिया पैसिफिक रीजन में वो कौन सी कंपनी है जो टॉप पे रही इन सस्टेनेबल कंपनीज इन मेटल माइनिंग सेक्टर, तो वो आपकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रहेगी जो फर्स्ट पोजिशन पे रही इन द एशिया पैसिफिक रीजन और टॉप 3 में रही इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंपनीज इन मेटल माइनिंग सेक्टर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी की। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें फॉर फिस्कल ईयर 23 तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिफरेंट डाटा प्रेजेंट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रेड में ना तो ये अपडेटेड डाटा है और जो ब्लू में है वो पुराना डाटा होगा। पुराना डाटा को अपडेट करके नया डाटा है और आप देखेंगे जो ट्रेंड दिखा रहा है कि जो नया डाटा है ना वो कहीं ना कहीं कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जो हमारा पुराने प्रोजेक्शन थी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रीजन हम जानते ही हैं, वॉर लाइक सिचुएशन, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, रिसेशन की बातें आ रही हैं और जो जियोपॉलिटिक्स प्ले करती है इनकी वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई के द्वारा जो प्रोजेक्शन की गई है 6.8% की गई है जो लेटेस्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.5, ओईसीडी के द्वारा 6.6, आईएमएफ के द्वारा 6.8, फिच रेटिंग्स के द्वारा 7%, इंडिया रेटिंग्स के द्वारा 6.9, एशियन डेवलपमेंट बैंक 7, आरबीआई के द्वारा 7। यहाँ पर एक और ऐड करेंगे मूडीज ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया अभी 7% किया और जो पहले करी थी वो थी 7.7%, अब वो रिड्यूस करके कितनी कर दी है 7%। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं जो हमारे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे और इनके नोट्स ज़रूर से बनाना। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश इंदौर में इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम सेटअप किया गया है। आई रिपीट, अगर मैं बात करूँ ये रहेगा इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम। ये इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पर है, ये आपका रहेगा इंदौर मध्य प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसको डायरेक्टली मार्क करा जाएगा। इसी में आप यहाँ पे याद रखेंगे ये इस म्यूजियम में शोकास किया जाएगा हिस्ट्री ऑफ 1747 से लेकर 2020 के बीच में फोटोग्राफ्स होंगी, प्रिजर्व्ड आपके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इवन यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आपकी जो कारगिल वॉर रूम सेटअप किया जाएगा जहाँ पे फोटोग्राफ के थ्रू डिपिक्ट किया जाएगा कि कैसे वहाँ पर क्या सिचुएशंस थी एंड आप फोटोग्राफ की तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन रही होगी। ठीक है, तो इंडिया का पहला वर्ल्ड का सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पर, इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की। ये कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी 48th मीटिंग चेयर की ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अगर अभी हम म्यूजियम की ही बात कर रहे थे और अब जीएसटी की बात कर रहे हैं तो बता दो नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी कहाँ पर है, ये आपका है गोवा में। फिर हम बात करते हैं 48th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ये कहाँ पर हुई थी, ये पहली चीज़ याद रखेंगे, ये वर्चुअली हुई थी और न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और इनको चेयर किन के द्वारा किया गया, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है वो क्या है, इन्होंने काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है फॉर एन एपेबिलिटी ऑफ 25% सेस ऑन द एसयूवीज प्रोवाइडेड 4 रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। जो रिक्वायरमेंट दी हैं वो फुलफिल होंगी तो 22% यहाँ पर सेस लगेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं जीएसटी एक्ट की बात करूँ तो ये कब लॉन्च किया गया था, 2016 में जीएसटी को लॉन्च किया गया था ऑन
12 सितंबर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कैबिनेट चेयर कर रहे थे, उनके द्वारा अप्रूव किया गया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये काउंसिल कब बनी थी? आपकी 12 सितंबर 2016 को। और उसके भी 48 मीटिंग थी, जो कि चेयर की गई निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा भी एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज की गई है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की। मतलब लोगों ने यहाँ पे बताया गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कि कितने लोगों ने अपनी ग्रीवियंस दर्ज की, उसमें से कितने लोगों की ग्रीवियंस सॉल्व की गई, कितने लोगों ने किस डिपार्टमेंट में ग्रीवियंस दर्ज की और कितने लोगों ने किसी अलग डिपार्टमेंट में दर्ज की। यही सारी यहाँ पे बात की गई। तो अगर ध्यान दें तो यहाँ पर अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 में 18,19,104 ग्रीवेंसेज दर्ज की गई थी फ्रॉम ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। इन 18,19,000 में से 15,68,000 ग्रीवेंसेज हैव बीन रिड्रेस, मतलब रिड्रेस यहाँ पर क्या है? सॉल्व कर दी जा चुकी हैं इतनी ग्रीवेंसेज। फिर 11,29,000 केसेज आर अमंग दोज वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड 4,38,000 केस दैट वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब इस डाटा में से 11 लाख ऐसी हैं जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने सॉल्व की हैं और इसमें से 4 लाख ऐसी हैं जो कि आपकी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा सॉल्व की गई, वहाँ की प्रॉब्लम थी, वहाँ की ग्रीवेंसेस थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट न्यूज़, ये है एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। मतलब हर घर में अगर कोई एग्रीकल्चर, मतलब आप अगर एग्रीकल्चर पे अपना आपका हाउस होल्ड जीवित रहता है, अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस में हैं तो उसमें आपका जो मंथली हाउस होल्ड इनकम, आपके पूरे घर की जो इनकम रहेगी वो कितनी है, उसकी बात की गई। तो यहाँ पे जो डाटा बताया गया कि मेघालय ने यहाँ पर टॉप किया है इन दिस हाउस होल्ड मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। यहाँ पे बात करें तो ये 77th राउंड ऑफ द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे सेस सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से ये डाटा निकाला गया, जिसमें बताया गया मेघालय के अगर आप देखेंगे तो 29,348 रुपये हर महीना एक एवरेज हाउस होल्ड कमाता है मेघालय में फ्रॉम एग्रीकल्चर। वहीं पंजाब का आ जाता है 26,701 रुपीज़, हरियाणा का 22,841 रुपये एंड सोन, ऐसे आप देखते रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ये जो 77th राउंड ऑफ सर्वे था किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा लॉन्च किया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये न्यूज़। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की। ये कहाँ पर हुई थी? यूएन की 2022 की यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, ये आपकी हुई थी मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में। 7 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में ये आपकी यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, 7 से लेके 19 दिसंबर के बीच में। यहाँ पे क्या बात की गई? यहाँ पे जो आपके गोल्स हैं, जो हम देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की। यहाँ पे हमने बात की कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो ओशंस हैं उनको साफ़ किए रहें, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर में से पॉल्यूशन को रिलीज़ करें। ठीक है, पॉल्यूशन को मतलब कैप्चर करके उसको ख़त्म करें। तो यहाँ पे सारी बात की गई। और यहीं पे याद रखेंगे इसी के दौरान COP15 की भी, इट कंप्राइज्ड ऑफ COP15 मीटिंग ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं COP15 की बात करूँ तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन रहेंगे COP15 के? वो है चाइना, प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमने क्या याद रखने को मिली कि जो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है ना, ये कहाँ पर हुई थी? लोकेशन क्या थी इसकी? मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 की। अभी एक इंडिकेटर्स रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें बताया गया कि जो इंडिया में रिसर्च एंड आपके पेपर्स साइन होते हैं या रिसर्च पेपर्स जो आपके सबमिट किए जाते हैं, वो डाटा हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इवन जो आप पेटेंट्स होते हैं, मतलब कि इन्होंने किसी चीज़ को डेवलप किया एंड वो उनका राइट्स आते हैं कि कोई उनको कॉपी ना कर ले, तो वो पेटेंट्स हो जाते हैं फिर। तो हमने इस डाटा में हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अगर मैं बात करूं 2010 की, तो इंडिया की रैंक यहाँ पे साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स में क्या थी? 7th पोजीशन पे था। और यही बढ़ के अब 2020 में इंडिया की रैंक हो गई है 3rd। ठीक है, साइंटिफिक पब्लिकेशंस में इंडिया की रैंक
बढ़ के अच्छी हो गई है, 3rd पोजीशन पे आ गया है। यहीं पे अगर हम देखें तो 2010 में इंडियंस ने कुछ 60,555 पेपर्स को, रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया था। वहीं पे अगर हम 2020 की बात करें तो ये डाटा बढ़ के 1.5 लाख के करीब हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ये सारी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई कि इंडिया की 7th पोजीशन थी 2010 में और 3rd पोजीशन थी 2020 में। ये थी अकॉर्डिंग टू साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट, जो कि एनएसएफ फाउंडेशन ऑफ यूएसए के द्वारा पब्लिश की जाती है। एनएसएफ होता है आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक, यहीं पे अगर मैं बात करूं ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, अगर मैं पेटेंट्स की बात करूं, जो हमने बात की थी कि राइट्स लेने के लिए, इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा भी डाटा दिया गया कि 2018-19 में 2500 पेटेंट्स फाइल हुए थे, 19-20 में 4000 पेटेंट फाइल हुए और 2020-21 में हम देखेंगे तो 5500 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे पेटेंट फाइल किए गए। अगर बात करें फिर वीपो की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, डैरेन टोंग यहाँ के डायरेक्टर जनरल रहेंगे। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं नाइजीरिया एंड रवांडा। ये वो पहला अफ्रीकन नेशन बना टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आर्टेमिस अकॉर्ड्स बेसिकली क्या है? स्पेस कोलैबोरेशन के ऊपर यहाँ पे बात की गई कि हम स्पेस में कोलैबोरेशन से आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे इन स्पेस प्रोजेक्ट्स। तो अभी रिसेंटली नाइजीरिया और रवांडा वो पहले अफ्रीकन नेशन बने जिन्होंने ये आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया था। ये नासा और जो स्टेट ऑफ यूएसए के द्वारा साइन किया जाता है ये आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बेसिकली क्या है कि सर गवर्नमेंट पे, बैंक्स पे रिलाई ना करके ये इंश्योरेंस कंपनी पे भी रिलाई करते हैं कि अगर कल को ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता, अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये आपकी हमें बॉन्ड्स प्रोवाइड करेगी, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। बेसिकली ये श्योरिटी बॉन्ड्स हैं कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा। इवन अगर आप देख रहे हो कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, जो रोड्स के डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो हाईवेज के डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। रीज़न बीइंग कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह, अगर आपने जैसे फिजिक्स में पढ़ाओ ए और बी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है जाने के लिए, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी घूम के, ऐसे भी करके, कैसे भी जा सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसे ही समझिए कि ऑल ओवर द इंडिया हम चाहते हैं कि जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट हो वो बहुत ज़्यादा कम हो, और हम उसी के लिए हम ऐसे काफ़ी ज़्यादा हाईवेज डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे आप इजीली गुड्स का ट्रांसफ़र हो सकेगा और लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमली डेवलप होगा तभी तो हम देखेंगे ये हमारी और भी सेक्टर ग्रो करेंगे। तो सिमिलरली इसीलिए ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च की गई। इसके लिए ये श्योरिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसके द्वारा, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसके द्वारा दिया जाएगा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये प्रोवाइड करा जाएगा। अगर यहीं पे मैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो हैं तपन सिंघल, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2001 में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज़ किया गया वन लैटिस, जो कि पहले पीजीए लैब्स कहलाया जाता था, इनके द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया कि अगर हम बात कर रहे हैं वो कौन सा बैंक है जो कि डेबिट कार्ड्स में टॉप कर रहा है, कि मतलब सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड्स हैं उनके जो यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से यूजिबिलिटी के हिसाब से डेबिट कार्ड सबसे ज़्यादा किस बैंक का यूज़ किया जा रहा है? वो है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ क्रेडिट कार्ड्स किस कंपनी का, किस बैंक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपके है एचडीएफसी बैंक, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। क्रेडिट कार्ड आपका एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वहीं पर अगर मैं बात करूँ डेबिट कार्ड की तो वो एसबीआई का रहेगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। मूविंग ऑन, फिर हम बात करते हैं पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान एक लॉन्च किया गया कि जो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं ना, क्या वो सिक्योर रहती है या नहीं रहती। इसीलिए एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया जिसका एनुअल प्रीमियम रहेगा 30 रुपये का, और यहाँ पे आपके 10,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन को इंश्योर किया जाएगा कि जो हम ट्रांजैक्शन भेजी जा रही है वो राइट पर्सन तक पहुँची या नहीं,
पहुँचे। सिर्फ 30 रुपये सालाना के तौर पे आपके 10,000 तक का ट्रांजैक्शन सेफ रहेगा। 1 लाख तक इसको बढ़ाने की बात की गई, लेकिन उसको फ्यूचर में हम ये लॉन्च इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसी के लिए याद रखेंगे OCL क्या है आपका 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये आपकी पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। इन्होंने HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के साथ अभी टाई अप किया ताकि ये पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया जा सके। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये कोलैबोरेट करके यही लॉन्च किया गया। अगर HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है रितेश कुमार, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंधन बैंक की। बंधन बैंक ने अभी एक MOU साइन किया डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ताकि जो डिफेंस पेंशनर्स है ना उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं PTC इंडिया। इन्होंने भी एक पैक्ट साइन किया ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ। ये ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन भूटान की कंपनी है, याद रखेंगे। इंडिया से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या समझ सकता है इसको न्यूज़ को कि इंडिया से भूटान एनर्जी सप्लाई कराने की बात की गई, ग्रीन एनर्जी। रीज़न बीइंग, ग्रीन एनर्जी भी नहीं कह सकते, डायरेक्ट पावर सप्लाई कराने की बात की गई कि भूटान में अब जो विंटर्स होगी और विंटर्स की जो डिमांड है एनर्जी की, जो नीड है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे इंडिया से ये एनर्जी प्रोक्योर की जाएगी। तो यहीं पे याद रखेंगे PTC इंडिया लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ पावर परचेज एग्रीमेंट PPA विद ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक एनर्जी यूटिलिटी फर्म है भूटान में। ये इंडियन मार्केट से एनर्जी सप्लाई परचेज करेगी ऑफ 600 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम द इंडियन मार्केट ड्यूरिंग द विंटर सेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला की। इनको अभी अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ AERB। AERB क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो अभी रिसेंटली किनको नया अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड, वो है दिनेश कुमार शुक्ला जी। यहीं पे याद रखेंगे दिनेश कुमार शुक्ला जी जो है, इनकी अपॉइंटमेंट कितने साल की रहेगी, 3 साल की अपॉइंटमेंट करी गई है। और किन के द्वारा अप्रूव की जाती है, ये ACC अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। ठीक, दिनेश कुमार शुक्ला की बात करें तो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ज्वाइन किया था 1981 में आफ्टर कंप्लीटिंग द 25th बैच ऑफ द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल का। ऑलराइट, और अब बात करें AERB के तो नए चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार शुक्ला जी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1983 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर न्यूज़ आ जाती है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी एक टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट, डायरेक्टली याद रखेंगे। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 दिसंबर को हम इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज public awareness about the value of solidarity, stimulate new efforts for the eradication of poverty and remind governments of all the countries their responsibility under international agreement। ठीक है, यहीं पे यूनाइटेड नेशंस की बात करें, एंटोनियो गटर्स यहाँ के सिक्योरिटी जनरल रहेंगे। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में आपका यूनाइटेड नेशंस का। एंड ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1945 में। फिर आ जाता है आपका गुड गवर्नेंस वीक। याद रखेंगे सेकंड गुड गवर्नेंस वीक है आपका। एक चीज़ कमिंग बैक, सॉरी पहले मैं और बता दूं, पहली बार जो ये डे ऑब्जर्व किया गया था ना 2006 में ऑब्जर्व किया गया था, 20 दिसंबर 2006। सो कमिंग बैक, गुड गवर्नेंस वीक की बात करेंगे। सेकेंड एडिशन है ये आपका गुड गवर्नेंस वीक का, जो आके 19 से लेके 25 दिसंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है गुड गवर्नेंस वीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थीम रहेगी 2021 की वो क्या थी, प्रशासन गांव की ओर। ये आपके 2021 की थीम थी आपकी गुड गवर्नेंस वीक की। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ स्टेट न्यूज़ देखते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने अभी एक MOU साइन किया ताकि एक ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज प्रोजेक्ट्स डेवलप की जा सके इन यूपी। आई रिपीट, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज को डेवलप करने के लिए यूपी में
यूपी गवर्नमेंट ने भी एक पैक्ट साइन किया ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए। और इसी के लिए एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई यूपी के द्वारा अराउंड 42 बिलियन डॉलर रुपीज़, और ये सारा अमाउंट एक साथ नहीं जाएगा, कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में जाएगा। यही आपका स्मार्ट सिटी जो डेवलप ऑफ नॉलेज बनाने की बात की गई, 500 एकड़ ऑफ लैंड पे डेवलप करने की बात की गई इन द यूपी, दैट विल हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द अपकमिंग वर्ल्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। और यहाँ पे 42 बिलियन डॉलर स्पेंड करने की बात की गई, एंड यहाँ पे 42 में से 7 बिलियन डॉलर अभी हमें देने पड़ेंगे, एंड आने वाले टाइम में ये धीरे 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 ऐसे करके इंस्टॉलमेंट के थ्रू ये मनी जाएगा। मूविंग ऑन टू द वन लाइनर फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। सबसे पहले एमपी को इंदौर मध्य प्रदेश गेट इंडियाज फर्स्ट और वर्ल्ड का सेकेंड इन्फेंट्री म्यूजियम एट इंदौर मध्य प्रदेश। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने चेयर की 48th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिलीज की एनुअल रिपोर्ट ऑफ CPGRAMS फॉर द ईयर 2022। मेघालय ने टॉप किया इन द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। फिर 2022 की यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की बात करें, मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में हुई। साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 की बात करें, इंडिया ने जंप किया फ्रॉम 7 to 3rd इन द ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस। फिर नाइजीरिया एंड रवांडा की बात करें, ये पहले अफ्रीकन नेशन बन गए टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड, और ये क्या है, स्पेस कोलैबोरेशन को लेके। नितिन गडकरी ने पहला शॉर्टी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। डाटा बाय वन लैटिस के द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया अगर हम डेबिट कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो लीड कर रहा है एसबीआई बैंक, और अगर क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है। ओसीएल एंड एचडीएफसी अर्गो ने कोलैबोरेट किया टू लॉन्च पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान। बंधन बैंक ने एक एमओयू साइन किया सीजीडीए के साथ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स। पीटीसी इंडिया ने साइन किया एक पैक्ट विद ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन टू एक्सपोर्ट 600 मेगावाट पावर। न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला ने इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ AERP। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया एक टेस्ट सैटेलाइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट। इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की बाय विनिंग द T20 टाइटल फॉर ब्लाइंड्स फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे की बात करें तो 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड गुड गवर्नेंस वीक की बात करें तो ये 19 से लेके 20 दिसंबर के बीच 2022 में ऑब्जर्व किया गया। फिर यूपी गवर्नमेंट एंड ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया टू बिल्ड द ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ द नॉलेज प्रोजेक्ट्स इन यूपी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं। जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में करते हैं तो जो भी न्यूज़ दी जाए ना आपको, आप आपस में भी डिस्कस कीजिए। अब जैसे आप कमेंट तो कर देते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के आंसर पढ़ेंगे ना, मान लो आपने 2 पॉइंट्स लिखे किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे रिसेशन की बात कर रहे थे तो 2 पॉइंट लिखे गए, तो आप देखेंगे जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने 2 अलग से पॉइंट लिखे होंगे तो टोटल 4 पॉइंट हो गए। तीसरे बच्चे ने कुछ और 2 पॉइंट लिखे होंगे तो टोटल 6 पॉइंट हो गए। तो ऐसे अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कीजिए, ऐसे अपने नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए। आर्टिकल्स जो आपके डेली आप देखते हैं पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, उनको ज़रूर पढ़िए, उनसे आपको ना चीज़ें समझ आएंगी। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखिए, उससे क्या होता है आपका एक पर्सपेक्टिव खुलेगा, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेंगे, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ पे कि आपकी जो थिंकिंग है कैसे चेंज होती है। आपको जैसे मान लो ये पता है कि न्यूटन्स लॉ होते हैं, फोर्सेस के लॉज होते हैं, तो ये पता है तब आप हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन ऐसी भी चीज़ होंगी, कुछ मान लो आपको कुछ नहीं पता, तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको एक नई तरीके से चीज़ें समझ आने लगेंगी, नई तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करने लगेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, जो कि आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जिन बच्चों को हिंदी समझ आती है उनके लिए हिंदी, और जिनको इंग्लिश समझ आती है उनके लिए इंग्लिश में हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये डेली बेसिस पे होता है। सिमिलरली अगर हम देखें वीकली करंट अफेयर्स भी आपका हिंदी और इंग्लिश में रहता है, और जो मंथली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके पूरे महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, बहुत अच्छा सेशन होता है। इसमें MCQ पोर्शन रहता है, इसमें भी आपका हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में हम ये कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है आपका टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है यहाँ पे। टॉपिक वाइज रिलेटेड जैसे आपका नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स,
डिफेंस, आपका एप्स एंड वेब पोर्टल्स, आपका कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, या किसी ने कोई नई एप्लीकेशन बनाई, किसी ने कोई नई मिसाइल बनाई है, या कोई इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वो सारा हम यहाँ पे टॉपिक वाइज में कवर करते हैं और ये भी आपका हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में रहता है। इसके सब के अलावा फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, हम क्विज़ आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे। ये क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ने के बाद जैसे हमारी वीडियो देख के नोट्स बना के खुद को असेस करना चाहते हैं, एक असेसमेंट चाहते हैं, तो वो ये क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन में। और ये बड़ी अच्छी क्विज़ होती है, 20-25 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और आपकी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अगर ये सारा काम जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना फ्रेंड्स, इतना कर लेते हैं, और जो अपने नोट्स बनाते हैं उनको साइड बाय साइड रिवाइज कराते चलते हैं, तो आप ये समझ लें करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटेगा नहीं। आपका ऑलमोस्ट 99.99 करंट अफेयर्स मैं कहता हूँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 का। सेकंड, किस कंट्री ने, विच कंट्री इज द होस्ट, या फिर किस कंट्री ने अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता इन द ईयर 2022 और कितनी बार जीता ये भी बताइएगा। फिर सेला पास टनल जो कि अभी न्यूज़ में देखी गई थी, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। रायथू बंधु इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फिफ्थ, एज पर द यूएन नेचर डे व्हाट % ऑफ द प्लेनेट इज सॉट टू बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। ठीक, और इसी के साथ साथ आपका एक छठा क्वेश्चन रहेगा जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कशन करें, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ जीआई टैग। जीआई टैग क्यों दिया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है किसी भी कल्चर में। अब जैसे हमने देखते हैं अभी गमोछा जो कि असम के प्रोडक्ट था, उनको जीआई टैग मिला है, तो रीज़न क्या रहता है इसके जीआई टैग का, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या रहती है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। मैं देखूंगा कौन बच्चा डिस्कस करता है, कौन बच्चा डिस्कस नहीं करता। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.